So hi everyone, this side Himanshu from Fluent Fusion Academy. We will talk today Tanu Dhaka, who is in Germany and pursuing bachelor's in artificial intelligence. So hi Tanu, how are you? Hello, Ivanshu sir. How are you? I'm good. I'm And also good. yes, I'm Yes. studying artificial intelligence here in Germany. I'm here since 1.5 year. Okay. And yes, that's all about me right now. Okay. So today we will ask you some questions. Okay, regarding Germany and Yeah. your studies and everything like German language, part-time Mhm, job, and everything which will be help to students who want to come to mhm, Germany. Okay. mhm. Yes, sir. Sure. Okay. So my first question is why you choose Germany over other countries? Okay. Like which thing you So attracts so much so you learn German language till B1 or B2 and mhm, you go there. mhm. Okay, there are multiple reasons to select Germany for me, and the main reason was that first of all, that the tuition fees was like zero here, and Okay. after that, the quality of education is very good. I mean, I cannot compare with any other foreign country, but as compared to India, they focus more on practical things, and since 1.5 year in my 3 semester, I have seen that there is no assignment, no illogical assignments here. And I really like this thing about Germany. They focus Okay. actually on the practical things rather than just saying illogical things that do the assignment or just copy the things. Yeah, that's Mhm. what I like about Germany. Yeah. Okay. And what about the like you can do easily the part-time jobs and others and what kind of opportunities you have after completing your bachelor's? Uh-huh. Okay, so first of all, we'll talk about part-time jobs. So in part-time jobs, right now I'm working in Woolworth. It's like a kind of store Mm-hmm. and you can find everything related to your household and clothing. That's about Woolworth. And to be honest, for me, it was not struggling to find a job, not a struggle to find a job here because I knew good level of German thanks to Himanshu sir. Okay. And yes, it was like not that hard. And I have been working in Woolworth since 10 months. All my colleagues are really good, and my salary is also good. I got the visa extension for 2 years recently, and yes, Himanshu sir helped me in that too. I was guided by him and also about the future opportunities. Future opportunities are for IT and AI and hospitals and hotel management and nursing. Obviously, it's very good. And like I have seen multiple students doing really great. My seniors are doing really good in this field. And yes, obviously you need to to study hard, and it's not a problem at all because we'll be studying in a very interesting and interactive way. It's not like India, so yeah, I like it. ओके सो यू हैव टू आपको थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा लाउडर बिकॉज आप बोलते बोलते थोड़ा ज़्यादा ही Okay, स्लो चले गए थे ओके यस okay, एंड sure, I will try. यस यस Mhm. एंड आपके बिजनेस कंप्लीट होने के बाद में आपको प्लेसमेंट चाहिए या फिर आप मास्टर्स के लिए प्लान करेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि जर्मनी में थोड़ा ऐसा है कि यहाँ के लोगों के पास बहुत ही एक स्टेबल इनकम है तो हम्म, ये लोग अपना इतना हाई लेवल की एजुकेशन लेना प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनको वो एक बर्डन लगता है लाइक कि हमारे पास गवर्नमेंट अच्छा पैसा कमा कर रही है अगर हमारे पास रोड में बहुत अच्छे ऑप्शन हैं तो ठीक है नहीं प्रेफर करते कि वो इतना अच्छा पढ़े तो अगर आप बैचलर्स भी करते हो और आपको जर्मनी में सेटल होना है तो आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी लाइक इट विल बी लाइक 4 लाख पर ईयर सॉरी per month पर मंथ in यस Indian rupees per month Indian rupees and अगर आप बहुत अच्छे से भी रह रहे हो तो आपके मैक्सिमम एक्सपेंसेस 1.5 पर मंथ जाएंगे एंड वो बहुत अच्छे से रहने पे है सो आई थिंक कि आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत अच्छी हैं एंड ओके बैचलर्स करके भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो आई डोंट थिंक कि यू नीड टू गिव मोर टाइम फॉर मास्टर्स एंड अगर आपको दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना है जर्मनी इफ यू डोंट लाइक जर्मनी इन एनी केस विच वोंट बी द केस आई थिंक ओके ओके सो if that's the case then आपके लिए मास्टर्स सजेस्टेड है हम्म ठीक है yeah. लाइक नाउ वी विल टॉक अबाउट जर्मन लैंग्वेज आप कौन से लेवल तक आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी जर्मनी आने से पहले Mhm, अपनी एप्लीकेशन लगाने से mhm, पहले और कौन से लेवल तक स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज सीखनी चाहिए इवन इन mhm, जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं इंग्लिश टोट पे mhm.
ओके, सो इसके लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स के साथ बताऊँगी। ओके। सबसे पहले अगर आपने ए टू बी1 लेवल किया है हुँ, और अगर आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को बोल पा रहे हो, हुँ, हुँ, लाइक आपकी स्पीकिंग और हियरिंग 2 चीज़ बहुत मैटर करती हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ऑब्वियसली करते हो, बट आप बेसिक कम्युनिकेशन से थोड़ा-सा ऊपर कर पा रहे हो, तो टू बी ऑनेस्ट अगर आप जब तक एक अच्छे फील्ड में नहीं जाते जहाँ पे प्रॉपर जर्मन चाहिए है, तब तक आपको इतनी नीड नहीं है, क्योंकि मैं खुद कैश काउंटर पे काम करती हूँ, मेरा कस्टमर्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन होता है, मेरा बी1 लेवल है, बट आई कैन स्पीक इट कॉन्फिडेंटली। हुँ, सो हुँ। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, सो बी1 कॉन्फिडेंस तो लेवल चाहिए इज़ उसमें। हाँ, यस, तो आई थिंक बी1 लेवल इनफ है, बट अगर आपका ये है कि अगर आपको एक सेम फील्ड में पढ़ाई करनी है, आप हुँ, स्टडी सेम फील्ड में करना चाहते हो, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर्स बहुत फास्ट बोल जाते हैं, तो आपको जर्मन आई थिंक बी2 फॉर श्योर आना चाहिए। हुँ। एंड कॉन्फिडेंस के लिए थैंक यू हिमांशु सर, आपने बहुत हेल्प की थी उसमें, आपके वेलकम, आपके साथ वेलकम, एक्सप्रेशन वेलकम। किया, बहुत बहुत इट वाज़ वेरी इंटरेक्टिव, थैंक यू फॉर दैट। एंड बैक टू द टॉपिक, इट वाज़ मोर लाइक कि मैंने देखा है अगर जिन बच्चों का कोर्स होता है जर्मन में, हुँ, हुँ। उनके लिए बी2 मैंडेटरी है। आई वोंट रिकमेंड कि आप बी2 से नीचे आएँ। आ सकते हैं, कई कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, पर वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना होगा और जितनी मेहनत आप इंडिया में पीछे छोड़ के आओगे, उससे डबल आपको यहाँ आके करनी पड़ेगी। कई काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर हम जर्मनी चले जाते हैं, तो जर्मनी जाने के बाद में हमें वहाँ पे रहते-रहते जर्मन लैंग्वेज आने लग जाएगी। तो ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है? ओके। ओके, तो इस पे अगर आप आपका बाहर का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, आप इंट्रोवर्ट नहीं, आप एक्सट्रोवर्ट हो और आप मतलब मेरा थोड़ा ऐसा है कि मतलब मुझे नहीं भी आती, मुझे कुछ वर्ड्स नहीं भी आते, फिर भी मैं उनको बताती रहती हूँ कि ऐसे, वैसे, वैसे, तो वो मुझे करेक्ट कर देते हैं, बहुत बार बहुत पोलाइट वे में करेक्ट करते हैं। सो हुँ, हुँ। मतलब आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हो उस चीज़ को। बट अगर आप एक थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन हो, आप इतना बाहर कम्युनिकेशन नहीं करते, आपके काम से अलग, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम होगी इस चीज़ में एंड आपको पहले ही कर लेनी चाहिए वो चीज़। ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स हुँ, इंग्लिश कोर्ट में आना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको हाँ, हाँ। एप्लीकेशन फिल करने के लिए जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सिर्फ आईएलटीएस करें या हाँ, फिर हाँ। टोफल करें, फिर वो जर्मनी हुँ, इज़िली हुँ, आ सकते हैं। तो उनको जर्मन हुँ, हुँ। लैंग्वेज सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए? लाइक इंस्टेड ऑफ ओके। क्लासरूम, ठीक है, अगर वो बाहर हुँ, निकलते हुँ, हैं, ठीक है, डेली हुँ, लाइफ हुँ, स्पेंड करते हैं वहाँ पे, तो उनको जर्मन हुँ, लैंग्वेज हुँ। चाहिए, नहीं चाहिए? सी मेरे लिए एक एक बड़ा मिसकंसेप्शन था, यहाँ पे मैं मिसकंसेप्शन ला रही हूँ थोड़ा, ठीक है। कि मतलब जर्मन्स थोड़ा र्यूड होते हैं कि वो इंग्लिश नहीं बोलते ये वो, बट मेरा एक्सपीरियंस टोटली अपोजिट रहा है। कई बार मुझे कैश काउंटर पे कोई वर्ड नहीं आता, वो लाइक ऑटोमेटिकली इंग्लिश में मुझसे बात करने लग जाते हैं, हुँ, हुँ। अगर उन्हें लगता है कि मुझे नहीं आ रहा और उनको इंग्लिश आती है तो। हुँ, तो मतलब वो कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आपको किसी कन्वर्सेशन में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना है और आप वो सारे जर्मन बोल रहे हैं, तो आपको बहुत लेफ्ट आउट फ़ील हो सकता है। इसके लिए भी सोशल स्किल्स के भी लिए भी और आई थिंक आप बाहर आ रहे हो एक्सपोज़र लेने भी, नॉट जस्ट लाइक कि आप स्टडीज़ करने आ रहे हो, एक्सपोज़र भी बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी होती है एंड सेकेंडरी आपको जॉब ढूँढना। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए लाइक कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो वेयर हाउस में काम करते हैं, वेयर हाउस में काम करने के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, नथिंग एल्स। हुँ। बट वेयर हाउस की जॉब टफ भी होती है। अगर आप वेयर हाउस से आगे बढ़ के थोड़ा अच्छा करना चाहते हो स्किल वर्क जो करना चाहिए आपकी बेसिकली। फील्ड वर्क भी नहीं, अगर फील्ड वर्क से भी आप थोड़ा ईजी वर्क लेना चाहते हो, जैसे मेरा काम है वो थोड़ा ईजी है, मुझे कुछ नहीं बस कैश काउंटर पे बैठना होता है, नथिंग एल्स, कस्टमर भी हुँ, कम होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ करना है और इससे भी अच्छा करना है तो आपको जर्मन आनी चाहिए और मैं सजेस्ट करूँगी कि जर्मन इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन एट लीस्ट बी1 लेवल। ठीक है। जैसे आपने यस। बताया कि मतलब जहाँ पे आप वर्क कर हुँ, रहे हो, वहाँ पे लोग जो हैं आपसे इंग्लिश में हुँ, भी हुँ, बात कर लेते हैं, ठीक है। हुँ, लेकिन हुँ, शायद ये भी हो सकता है कि सिर्फ़ जैसे सिटीज़ होती हैं, जैसे बर्लिन है, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हुँ, हो हुँ, वहाँ पे, जैसे फ्रैंकफर्ट है, हुँ, तो हुँ, कुछ सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी हुँ, लोग ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अगर बात कहें कि कुछ लोग आउट ऑफ सिटी हैं, ठीक है, हुँ, तो हुँ, वहाँ पे भी जो विलेजर्स हैं, उनका भी नेचर ऐसा ही है, इको फ्रेंडली है या फिर कुछ अलग है? हुँ। ओके, सी मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ एंड मैं बवेरिया में रहती हूँ, रोज़नहाइम, एंड हुँ, ये वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल सिटीज़ माना जाता है कि यहाँ के लोग बहुत रूड होते हैं हुँ, एंड इनका एसेंट भी बहुत डिफरेंट होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे साथ मैंने आज तक कभी ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं की है हुँ, एंड मुझे थोड़ा इसका भी मिसकंसेप्शन था कि मेरे लिए रेसिज़्म भी होता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आज तक
फेस नहीं किया है रेसिज्म थैंकफुली। अच्छा। एंड मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ दे वर वेरी पोलाइट, दे वर वेरी नाइस टू मी, एंड हुँ। सामने से कन्वर्सेशन भी बहुत बार इनिशिएट करते हैं, एंड यस दैट वाज माय एक्सपीरियंस। ओके। सो अभी हम बात करते हैं यस। कि आप अभी बैचलर्स कर रहे हो, ठीक है, स्टडी भी कर रहे हो, साथ हाँ। में आप वर्क भी कर रहे हो, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। देन लीगल वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? ठीक है, आपकी पर्सनल स्पेस भी चाहिए आपको, मतलब पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना है, आपको स्टडी भी करनी है, आपको पढ़ना भी है। तो सब चीज़ जैसे कैसे कंट्रोल हो पाती हैं फिर? मैनेजमेंट कैसे करते हो आप? ओके, सो स्टार्टिंग में जैसे कि मैं इंडिया से आई थी तो मतलब मुझे थोड़ा टफ लगा था क्योंकि हमने कभी जॉब नहीं किया इंडिया में, हमारा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे जॉब करने का। हुँ। उसके साथ साथ स्टडीज भी, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा कोर्स भी थोड़ा टफ है, इट्स अच्छा। लाइक इंटरेस्टिंग बट टफ, इट हुँ, नीड्स हुँ, मोर टाइम देन एनी अदर कोर्स। हुँ। सो मैं स्टार्टिंग में मुझे टफ हुआ, मेरा थोड़ा डाउनफॉल भी हुआ, स्टडीज भी नए तरीके से थी। सो एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, 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 कोई बात नहीं। इंटरप्ट कर रही अरे कोई बात नहीं। हूँ। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? स्टडी एंड वर्क, मतलब कहाँ पे कैसा क्या होता है? ओके। हाँ, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई बट उसके बाद जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया और मैं स्टडीज़ के साथ अलाइन करते गए कि हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। हुँ, हुँ। इन विद इन एक्सरसाइज़ एक भी क्वेश्चन नहीं आता। आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है पर विद इन एक्सरसाइज़ एक भी क्वेश्चन नहीं आता। सारे हुँ, आपके हुँ। नॉलेज को, प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करते हैं, दो जो कि चैलेंजिंग होता है। इंडिया में जस्ट मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स होते थे कि आप रट्टा मारो चले जाओ। हुँ। इट्स नॉट द दिस इज़ नॉट द केस हियर। सो यहाँ पे उन चीज़ों को सीखने में मुझे थोड़ा टाइम लगा बट नाउ इट्स गुड, एंड कोर्स और ज़्यादा इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एंड रही बात जॉब की, सो एज़ यू नो, एज़ आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि मेरी जॉब इतनी टफ नहीं है। सो 18 आवर्स मुझे पर वीक जॉब करनी होती है। मैं 3 दिन जाती हूँ एंड मेरा जस्ट 15 मिनट्स अवे है हुँ, जहाँ हुँ। मैं रहती हूँ उससे। सो मुझे इतना टाइम नहीं लगता है आके। वो 3 दिन होते हैं, मैं सिर्फ़ अराउंड 1 आवर स्टडीज़ का देती हूँ, उससे अलग जो 4 दिन होते हैं, मैं पढ़ती हूँ। सो मेरा वर्क एंड जॉब का बैलेंस अच्छा चल जाता है। जो मेन मुझे एक प्रॉब्लम आती है जस्ट खाने में आती है क्योंकि मैंने इंडिया में भी कभी नहीं बनाया था। अच्छा। बट येस इट्स मैनेजेबल लाइक ओवरऑल। मतलब आपकी जो स्टडी होती है, आपके यूनिवर्सिटी में हुँ, जहाँ पे आप जाते हो कॉलेज में पढ़ने के लिए, वहाँ पे कितने आवर्स को हुँ। आपको वहाँ पे देने पड़ते हैं? फिर आप कितने आवर्स आप पार्ट टाइम जॉब करते हो? फिर आपके पास टोटली कितने आवर्स बच जाते हैं खुद के लिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीज़ के लिए मेरे 4 दिन क्लासेस होती हैं, 4 डेज़, जो कि मैं सारी नहीं लेती ऑब्वियसली क्योंकि कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो आप खुद से कर सकते हो। हुँ। और सो आई थिंक 4 days 3 classes and every class 2 hours, 4 into 3 12 is it so? 4 4 16 हुँ। 16 आवर्स आपको पर वीक स्टडीज़ के देने होते हैं एंड 18 आवर्स जॉब के। उसके हुँ। बाद कुकिंग का रह जाता है। सो आई थिंक पर डे ओवरऑल मैं बात करूँ जिस दिन मेरी जॉब नहीं होती अराउंड 5 to 6 आवर्स मैं स्टडीज़ के लिए दे सकती हूँ। ठीक है। एंड जिस दिन जॉब होती है अप्रॉक्सिमेटली 1 आवर जिसमें रिवीजन काइंड ऑफ हो जाता है। सो दैट्स हाउ आई मैनेज इट एंड दैट्स इनफ। आई थिंक अगर आप रेगुलर रहते हो तो ये इनफ है। ठीक है। हुँ, देन अब बात हुँ, करते हैं लाइफ इन जर्मनी। लाइक यू आर आउटसाइड राइट नाउ, ओके, एंड लुक्स हाँ, ब्यूटीफुल। हाउस लाइफ इन जर्मनी ड्यूरिंग क्रिसमस, अक्टूबर फेस्ट, लाइक हाँ, काफ़ी फेस्टिवल्स आते हाँ, हैं। तब कैसी लाइफ है वहाँ पे हुँ, जर्मनी की? लाइक क्रिसमस मार्केट्स ओके, कैसे लगते हैं अभी? ठीक हुँ, है, वेदर, हाँ, कल्चर, इंडिपेंडेंस कैसा फ़ील करते हो आप? हाँ, ओके। सबसे पहले जब फर्स्ट सैलरी आई थी बहुत इंडिपेंडेंट फील हुआ था। दैट वाज़ रियली ओके। गुड फीलिंग लाइक वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। लाइक जितना भी काम किया था वो सब वर्थ इट था क्योंकि फर्स्ट सैलरी अच्छी आई थी। अच्छा। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूँ वेदर की, वेदर की स्टार्टिंग में हर किसी को प्रॉब्लम आती है लाइक कि स्टार्टिंग में आओगे आपकी एक बार आपको बीमार होना ही होना है, यू विल गेट इल फॉर वंस श्योरली। सो क्योंकि उसके बाद वेदर बट चेंज आप होता है ना, यूज्ड टू। यहाँ पे वेदर अपना अलग है, हाँ, वहाँ पे जर्मनी में एकदम से अपोज़िट जाता है। हुँ। एग्ज़ैक्टली। एंड टाइम तो भी वेदर मतलब चेंज। जो टाइम भी जैसे मतलब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। लाइक टाइम का अभी नो वरीज़। लाइक 4 एंड हाफ आवर्स का अभी भी ब्रेक है, ठीक है? वहाँ पे 4 एंड हावर्स आप पीछे हो हमसे, ठीक है? तो उसमें भी वो यस। चेंजिंग्स आती है। फिर यहाँ पे मतलब सर्दी-गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जाता है। अभी वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता होगा? यस। अभी जो प्रेजेंटली है इस टाइम इतनी ठंड नहीं पड़ी बट अभी भी स्टिल ये 0 डिग्री टेम्परेचर है राइट नाउ। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब I वही can फिर show मतलब you. ओके, I can show you श्योर, just a श्योर। second. Yeah, moments right now. 1 डिग्री, वाह! It's like -2, -2 feels डिग्री। like -2. Yes.
So this is the temperature right now. हम्म। And स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है इस टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए आपको। आप बीमार होते हो, आपकी नई लाइफ होती है, आपके पास दोस्त भी नहीं होते, हम्म। बट धीरे-धीरे आप उन सब से कोप अप कर जाते हो एंड आपका अच्छा चलने लग जाता है एक टाइम के बाद। एंड यू विल बी लाइक आप ज़्यादा गर्मी में आपको रहने के लिए फिर थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, आप गर्मी में ज़्यादा नहीं रह पाओगे ठीक है। फिर। अच्छा, एंड हाँ, जर्मन इजीली फ्रेंड बन जाते हैं इन द सॉरी? कंपैरिजन ऑफ इंडियंस। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, अगर हम यहाँ पे फ्रेंड्स हाँ, बनाने हाँ, हो, ठीक है, तो हम इजीली फ्रेंड्स हाँ। बना लेते हैं यहाँ पे। अगर वहीं पे इंडियंस जर्मनी आते हैं एंड दे वांट्स टू मेक फ्रेंड्स द जर्मन्स, सो इज इट इजी और डिफिकल्ट टू अप्रोच देम? ओके, सो इसके 2 फैक्टर्स बताती हूँ। अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करते हो, आप क्लासमेट्स हो या आप बाहर भी हो, इट इज़ ईज़ी। बट जर्मन्स लाइक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स रखना प्रेफ़र करते हैं, अदर देन दैट ओनली नेटवर्किंग। सो उसके केस में अगर आप बहुत क्लोज़ जाना चाहते हो, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनकी बाउंड्रीज़ बहुत होती हैं एंड हम इंडियंस में एज़ अ फ्रेंडशिप बाउंड्रीज़ नहीं पता। हाँ, हाँ। सो लाइक हमारा दोस्ती का मतलब होता है कि तू और मैं अब एक ही हैं। बट इन जर्मनी इट्स नॉट लाइक दिस, दे हैव देयर ओन पर्सनल टाइम्स एंड समथिंग लाइक दैट। सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू गेट इन वेरी लाइक पर्सनल कॉन्टैक्ट वेरी क्लोज टू देम। बट इन जनरल अगर आप अप्रोच करना चाहते हो, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी ओपन टू दैट। एंड आप एंड सेकंड फैक्टर, अगर आपको जर्मन बहुत अच्छी आती है एंड यू कैन गेट इनटू द कन्वर्सेशन दैट देन इट इज़ रियली ईज़ी या। ओके, एंड मैंने मतलब काफ़ी मैंने भी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हैं और काफ़ी रील्स चलती भी हैं कि एक स्टूडेंट जो मतलब जर्मनी की एक लड़की है, ठीक है, वो बैठी होती है, खाना खा रही होती है, फ्राइज़ खा रही होती है, फ्रेंच फ्राइज़ बेसिकली, ठीक है, उसका एक फ्रेंड आता है, वो आके वहाँ पे एक फ्राइज़ उसकी उठा के खा लेता है, ठीक है, फिर उसको बोलती है कि तुम्हारा इतना चार्ज होगा, तुम्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, तो ये रियलिटी एक में ऐसा मिसक होता है या ये फिर सिर्फ़ ये ऐसी फैंटेसीज़ है? ये एक मिसकंसेप्शन है क्योंकि मैं जहाँ पे काम करती हूँ, मेरी मैनेजर है, वो काफ़ी बार मतलब मेरी मैनेजर है, मेरी कलीग्स हैं, वो हमारे लिए कभी-कभी कुछ केक बना के ले आते हैं, कभी कुछ अच्छा। पैनकेक्स वगैरह रख देते हैं, हुँ, समथिंग हुँ। लाइक चॉकलेट्स रख दी। बहुत बार ऐसा होता है, वो हम काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक वही लोग खरीद देते हैं। हुँ, सो आई डोंट थिंक कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, जितने भी मैं जमात से मिली हूँ, इट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन। जस्ट मिसकंसेप्शन। कुछ लोग होते हैं ऐसे लाइक बहुत रेयरली आपको मिलते हैं, बट जनरली इन जनरल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर, कल्चर वहाँ पे हमारे हाँ, लिए मतलब आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। एंड देन फिर वी विल टॉक अबाउट लाइक अभी मैंने पूछा था कि अभी क्रिसमस चल रहा है, ठीक है, थोड़े दिन पहले अक्टूबर हाँ, फेस्ट था। इनके भी इवेंट्स आते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स आते हैं, हमारे भी फेस्टिवल्स आते हैं। तो जर्मनी में हमारे स्टूडेंट्स अपने फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, तो वो कैसा हुँ, रहता है? ओके, सो मैं यहाँ पे होली इवेंट में गई थी, जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था, होली का इवेंट था। सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज़ करने वाले इंडियन कम्युनिटी होती है, वो ऑर्गेनाइज़ करती है एंड मैंने देखा है कि जर्मन्स भी उस चीज़ में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अदर कंट्रीज़ के लोग भी आते हैं। मैं वहाँ पे गई थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सेम कलर, वाटर, आपको डीजे सब मिलता है आपको एंड आप बहुत अच्छे से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो एंड जैसे कि और लोग भी आपके कल्चर में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप भी और लोगों के कल्चर में इंटरेस्ट लेते हो। हुँ, हम भी क्रिसमस एंड अक्टूबर फेस्ट एंड देयर इज़ वन मोर फेस्ट दैट इज़ हैप फेस्ट व्हिच इज़ वेरी फेमस हियर। हुँ। बट ज़्यादा लोगों को लोग इंडिया में इसके बारे में बात नहीं करते, बट येस इट कौन-सा इज़ इवेंट लाइक बताया? वेरी कौन-सा फेमस। सॉरी, कौन-सा बताया आपने? इट्स हैप इट्स हैप फेस्ट, हैप फेस्ट। हैपफेस्ट। तो हैप येस, मतलब हैप वही फेस्ट सीज़न्स होते हैं ना लाइक हैप्स के? हैप यस यस यस, जब हैपफेस्ट का सीजन आता है, ये लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एंड दे आर लाइक लाइक इनके लिए वो बहुत ही एक्साइटिंग चीज होती है। आई डोंट नो व्हाई बट फेयर्स लगते हैं एंड लोग बियर इज ऑब्वियसली वेरी कॉमन है सो यस। ठीक है, ओके। अभी बियर का नाम लिया तभी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे काफ़ी लोगों का ये मानना है कि बियर काफ़ी सस्ती होती है यहाँ पे, ठीक है? यस यस एंड दूध ज़्यादा महँगा होता है, पानी ज़्यादा महँगा होता है, तो पानी रियलिटी पानी में ऐसा है? कितना डिफ़रेंस है? ओके, दिस इज़ नॉट अ मिसकंसेप्शन एक्चुअली। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी लेना चाहते हैं, पानी यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 90 सेंट्स टू 1 यूरो का आता है, बट अगर आप कोई बियर लेते हो तो वो 70 सेंट्स की होती है। अच्छा। लाइक सो अप्रॉक्सिमेटली बियर आपको 70 रुपीज़ में मिल जाएगी और पानी आपको 90 रुपीज़ में मिलेगा। हुँ, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो ऑब्वियसली बियर सस्ती है, बट डिपेंडिंग ऑन ब्रांड आप कितनी भी महँगी ले सकते हो, पानी भी कितना महँगा ले सकते हो। बट नॉर्मली अगर कंपेयर करें, बियर सस्ती मिलती है पानी से, दैट्स द मेन केस हियर। एंड व्हाट आर यस। द कॉस्ट ऑफ मिल्क एंड छाछ इनकी, बटर इनका क्या क्या ओके, कॉस्ट रहता है?
ओके। मिल्क जो है यहाँ पे वो 1.49 अप्रोक्सीमेटली पर लीटर रहता है, और इंडिया में भी अप्रोक्सीमेटली लाइक इंडिया के अप्रोक्सीमेटली डबल ही है, हम्म नॉट मच डिफरेंस। सो एंड जो दही रहती है, योगर्ट योगर्ट मिलती है यहाँ पे, उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, 1.19 सेंट यूरो। ओके ओके। एंड यस, एंड लस्सी यहाँ पे आपको मैंगो लस्सी मिल जाएगी जिसकी कॉस्ट 1 यूरो रहती है। हम्म। एंड एंड इंडियन फूड मतलब नॉर्मल, यहाँ पे मिल जाता है इजीली, अगर हम इंडियन फूड की ट्राई हाँ करते हैं तो मिल जाता हाँ है, हाँ मार्ट्स में जाते हैं तो। हाँ, आपको मेनली अगर आप इंडियन स्टोर पे जाओगे आपको फॉर श्योर मिल जाएगा, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो भी मिल जाते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट प्राइस। इंडियन रेस्टोरेंट में 15 to 20 यूरोस पर पर्सन आप चार्ज कर आप मतलब वन टाइम फूड के लिए पे कॉस्ट करते हो, पड़ता है आपको। बट हाँ, और हर जगह अच्छा भी नहीं मिलता, हर जगह अच्छा नहीं मिलता। डिपेंडिंग जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आई वोंट नेम इट, बट हाँ वहाँ पे अच्छा फूड मिलता है। ओके ओके। यस। So that's all. And final advice to German Indian students who want to come to Germany. आप क्या पर्सनली उनको एडवाइस देना चाहोगे बिफोर कम टू ओके, जर्मनी? सो ओके, बिफोर कमिंग टू जर्मनी मेरी सबसे बेस्ट एडवाइस है कि आप जर्मन सीख के आइए। अगर आप जर्मन नहीं सीख के आए, आप जो मेन चीज है मुझे लगता है एक्सपोजर, आप वो बहुत मिस कर जाओगे। आप घूम लोगे, आप दोस्त बना लोगे, आप इंग्लिश स्पीकिंग दोस्त बना लोगे, बट एक्सपोजर का मतलब होता है कि आप हर जगह से हर चीज करो, आप वो चीज नहीं कर पाओगे। एंड आपकी लाइफ बहुत इजी बना देता है जर्मन जर्मन लैंग्वेज आना। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जर्मन लैंग्वेज को श्योर सीख के आए। Okay, thank you यस। so much, Tanudhaka, for your precious नो time and वर्ड। everything. Okay, yes. या थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ भेजा, थैंक्स टू यू फॉर दिस। Okay, okay. Thanks for the appreciation. Okay, नो। so bye. ओके सर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Nice day.